Hi friends, this is Anuj from Chemical Engineering Concepts. So friends, let's consider today the situation of two classmates, that is Karan and Arjun. So this is our Karan and this is our Arjun. So you can see that Karan looks a bit serious but Arjun looks very cool and calm. Both are in the final year of their chemical engineering and have prepared for the gate exam, right? Both have the same efficiency and caliber. While Karan attempted 86 marks for the gate examination, Arjun attempted 80 marks for the gate examination. Now, after the results have come up in the month of March, Arun got 76 marks while Karan got only 57 marks after attempting 86 marks. And the rank that Arjun got was 80, while the rank that has come up with Karan is 412. So with this good rank, Arjun got selected for the MS program in Indian Institute of Science, Bangalore, and also got selected in two PSUs, that is ONGC and IOCL. And with this 412 rank, Karan have to prepare again for the gate examination. So where did Karan went wrong? Here we can see that while Karan believed in hard work, Arjun did some smart work. So today we will be focusing on the strategies that have been used by Arjun, right? And you can clearly see that because of the negative marking, you can see that the marks of Karan are very low as he may have expected, right? So today we will be focusing on how you can avoid the negative marks. We'll be looking at some tips and strategies which will be helpful for all of you to attempt and write the gate examination. So let's begin. So friends, negative marks. Negative marks is nothing but the marks deducted for wrong answers. When you do the wrong answers, when you attempt the wrong answers, you will get 1/3 marks deducted, right? So 1 mark will be deducted, right? For 1 mark questions actually, the reduction will be of 0.33, ठीक है? आपके 0.33 that is 1/3 आपका reduce हो जाएगा, right? और जब हम बात करेंगे when we talk about 2 marks question, तो आपके 0.66 marks reduce हो जाएंगे. तो एक्चुअली गाइज जब आप नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की जब मैं बात कर रहा हूं और आप 1 मार्क का क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक्चुअली आपका कितना रिडक्शन हो रहा है? एक्चुअली यू लूज 1.33 क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था वो अटेम्प्ट भी गया, राइट? और उसका नेगेटिव भी आपके साथ एड अप हो जाएगा, राइट? इसी तरह से अगर आप 2 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है वो, तो आपका एग्जैक्टली कितना मार्क्स जा रहा है? You are losing 2.66. So this will be very very dangerous when you are going on the top rank. जैसे ही आप रैंक आपकी बेटर होती जाती है तो गाइस क्या होता है, हमारा जो रैंकिंग हमारा जो मार्क्स है, अगर आप 1 मार्क भी आपका रिड्यूस हो जाता है, नेगेटिव जाता है, तो वो आपकी रैंक काफी ज्यादा लूज कर देता है, राइट? तो इस बात का हमको ध्यान रखना है. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम दिया करण और अर्जुन का, आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर अगर हम करण की अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन ने मे बी 3 1 मार्क के क्वेश्चन उसके गलत हो गए होंगे, राइट? यू कैन सी दैट 3 1 मार्क क्वेश्चन हमारा अर्जुन का गलत हो गया होगा. दैट मीन्स उसका 80 मार्क्स का अटेम्प्ट, फाइनल मार्क्स उसके आ रहे हैं 76, राइट? तो इसी तरह से अगर हम करण के ओर देखें तो करण का आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट he may have attempted so many questions in a wrong manner, right? और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है. there is a large gap and there is a large difference in the ranks that they both have got. So what were the strategies that were attempted by Arjun? We are going to see that, right? और ये strategies के लिए guys आपको अभी से काम करना पड़ेगा, right? It's the month of October is going to start, right? और आपको अभी से इस पर जोर से फोकस करना पड़ेगा. एंड सो स्ट्रेटजी नंबर 1,
स्ट्रैटेजी नंबर 1 गाइस ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं, यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात बता रहा हूं, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को लेके बैठिए, ठीक है। सो जैसे आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन से। बेसिकली अगर इनिशियली अगर आप स्टार्ट करें तो कम से कम 20 क्वेश्चन लेके बैठिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के फॉर एग्जाम्पल लेके बैठ रहे हैं तो यू मे गेट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। वी कैन हैव लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं गाइस। लेवल 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, दैट आर वेरी वेरी फंडामेंटल, राइट। यू कैन रिकॉल द फॉर्मूलाज, राइट, एंड आप उसको आंसर इजीली कर सकते हैं, राइट। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक जो कि मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो लेवल 1 में आते हैं। इसी तरह से अगर लेवल 2 की बात करें, सो देयर विल बी सम एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर आंसरिंग द लेवल 2 क्वेश्चंस, राइट, और देयर विल बी सम सिंथेसिस, राइट। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए, यू मे हैव टू डू सम कैलकुलेशंस एज वेल, राइट। सो दे विल टेक सम टाइम। And if I talk about level 3, so level 3 guys will be beyond your expectations. और आपको क्या करना है, these questions are not for you, right, these questions are not for you and you have to identify them and leave them. आपको ये identify करके simply छोड़ देना है, right। तो ये आपकी strategy होनी चाहिए while you are practicing your questions। तो आप अभी से अगर प्रैक्टिसिंग ही आप अगर उसकी उस तरह से रखेंगे जैसे कि आप रियल गेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको रियलाइजेशन भी होगा और एग्जामिनेशन का एग्जाम का गेट एक्चुअल एग्जाम का फील भी मिलेगा, राइट। सो गाइज लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं, लेवल 1 के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट 50 to 60% रहते हैं, राइट। दैट आर वेरी वेरी फंडामेंटल, दैट आर वेरी वेरी इजी, राइट। तो अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं अपने सब्जेक्ट्स के, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर लेवल 2 की बात करता हूं तो लेवल 2 में गाइज 30 to 35% क्वेश्चंस हैं, राइट। सो आंसरिंग दीज लेवल 2 क्वेश्चंस विल रिक्वायर योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप किस तरह से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की, किस तरह से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, किस तरह से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको याद रहें एग्जाम टाइम में, इसके लिए गाइस शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं, राइट। और अगर मैं लेवल 3 की बात करूं, सो ओनली 5% क्वेश्चंस लाई इन दिस कैटेगरी। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन, आप आंसर करते जा रहे हैं, यू हैव गॉन थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन गाइस आपका बिल्कुल इजी था, फंडामेंटल था, और वो आपका हो जाता है गलत, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार ध्यान से आप समझिएगा कि बीच बीच में आप आंसर अगर देखते हैं, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सो एक बार में आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद वापस आपको जाके देखना है, ठीक है। आप आफ्टर अटेम्प्टिंग दो सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपको वापस जाके देखना है कि उसके आंसर्स क्या हैं। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है गलत, विच इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन एंड ऑफ 1 मार्क। तो मोस्टली मैंने आपको बताया था जैसे लेवल 1 जो होता है वो 1 मार्क्स के होते हैं मोस्टली, राइट। इसी तरह से लेवल 2 मोस्टली 2 मार्क्स के होते हैं, और लेवल 3 भी आपका 2 मार्क्स का ही होता है। यहां हम थोड़ा सा क्रॉस देख सकते हैं, बिकॉज कभी कभी लेवल 2 में भी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हमारे क्वेश्चन इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 1 मार्क का फंडामेंटल क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वापस से अपने फंडामेंटल्स पे जाना है और उनको ठीक से लर्न करना है, ठीक है। और अगर कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है जो आप ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं, सिंपली उनको अपने शॉर्ट नोट्स में जगा दो। कीप दोज पॉइंट्स, दोज कॉन्सेप्ट्स फॉर योर शॉर्ट नोट्स। आप जरूर आपके शॉर्ट नोट्स में जरूर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको वो याद नहीं हो पा रहे, आपके शॉर्ट नोट्स में लिख के आपको जरूर याद हो जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आप ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करने वाले हो सिंपली, ठीक है। सो हम मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन सही है, 6th क्वेश्चन सही है, 7th भी सही है, 8 भी सही है, मान लीजिए 9 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, विच इज लाइंग इन द लेवल 2 कैटेगरी। सो लेवल 2 कैटेगरी पे मान लीजिए आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था दैट यस दिस लेवल 2 क्वेश्चन रिक्वायर सम कैलकुलेशन, राइट।
सो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकता है या कुछ बेसिक सा कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। और गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो आप बिल्कुल भी अवॉइड करिए, ठीक है, आप बिल्कुल इसको अवॉइड करना सीख लीजिए। आप वर्चुअल कैलकुलेटर को अभी से यूज करिए, राइट। वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज बहुत जरूरी है गाइस। अभी से आप उसकी प्रैक्टिस डालेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी और एग्जाम टाइम में, रियल टाइम एग्जाम में आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस होगी। आप एटलीस्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन कैलकुलेशंस, राइट। तो कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए गाइस, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। आपको 80% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और उन 80% के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, आपको गाइज ऑलमोस्ट जो हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट भी देते हैं, सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 2 मिनट पे आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से अगर लेवल 2 की बात करूं, तो लेवल 2 में आप ज्यादा समय लगा सकते हैं। सो यू कैन हैव लाइक 7 to 8 minutes, राइट, फॉर वन क्वेश्चन ऑफ लेवल 2, ठीक है। तो आपको इसलिए बहुत ही प्रिसाइसली और आराम आराम से कैलकुलेशन करना है। आपके पास 8 मिनट का समय गाइस काफी होता है अगर आप लेवल 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन भी आते हैं, राइट। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से गाइस याद रखना है, समझ के चलना है। अभी से उस चीज की प्रैक्टिस अभी से डाल लेनी है आपको कि हम आगे जाके मिस्टेक्स ना करें, राइट। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है और ये चीज याद रखनी है कि जब हम रैंक में ऊपर की तरफ जाते हैं, आप रैंक 1 की तरफ जैसे ही जा रहे हैं, एवरी मार्क काउंट, एक मार्क से भी गाइज काफी फर्क पड़ सकता है, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं बिटवीन लाइक 60 to 80 मार्क्स, 60 to 80 रैंक की अगर मैं बात करता हूं, सो गाइज 1 मार्क का भी अगर डिफरेंस है, सो दैट विल कॉस्ट यू टू लूज दिस मच रैंक, ठीक है। आप 30 रैंक तक लूज कर सकते हैं। तो आपकी अगर 80 रैंक आ रही, अगर 50 रैंक आ रही होगी, तो आपकी 80 रैंक आएगी सिर्फ 1 मार्क के लॉस से। तो आपको एक एक मार्क्स का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम बहुत ही ट्रिकी एग्जाम होता है गाइस, आपको बहुत ध्यान से, आपको अभी से प्रिपरेशन के तौर पे ही आपको अच्छे से अटेम्प्ट करनी है चीजें, जिससे एग्जाम टाइम में आपकी कोई गलती ना हो, राइट। एंड यस, टाइम टू आंसर, ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर आपको लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी है और आंसर को थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको समझना है क्वेश्चन, एक बार समझ लोगे आप लोग वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। सो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1। लेट्स कम टू दी स्ट्रैटेजी नंबर 2, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आपको गैस नहीं करना है, गेट एग्जाम में गैस नहीं चलते हैं गाइस, आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे, बिकॉज यस, गेट एग्जाम इज अ लाइफ चेंजिंग एग्जाम। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर्स बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो पाता है, ठीक है, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रहती है गाइस, गेट एग्जाम, ठीक है। आप क्या करोगे, आप गेट एग्जाम दोगे, आप अच्छी रैंक लाओगे, यू विल सिक्योर। आप अगर फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो वो आप कर सकते हैं गाइस। अगर आप किसी पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू आफ्टर सिक्योरिंग अ गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। तो गैस नहीं करना है, बिल्कुल जब आप श्योर हो तभी आंसर करें। तो जैसे कि मैंने करण और अर्जुन का एग्जाम्पल आपको बताया, यू मे लूज सो मेनी रैंक्स, अगर आप मार्क्स लूज करते हैं तो मार्क्स लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड यस, यू हैव टू रिलाई ओनली ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जोड़ देते हैं, राइट। अगर आप स्मार्ट वर्क भी करते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी नंबर 1 में आपको बताया, तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट टू योर प्रिपरेशंस। एंड यस, लक इज देयर, बट यू शुड नॉट rely much on your luck. And yes, hard work and smart work will pay you a good rank.
So there are some more things that you can do while attempting your test series, right? तो टेस्ट सीरीज के दौरान गाइज आप क्या क्या कर सकते हैं जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो गाइज कभी कभार ये हो जाता है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, द वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम, ठीक है. तो मान लीजिए आपका 25 आंसर आ जाता है, ठीक है, और 25 दोनों ही ऑप्शंस में है बट यूनिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है. तो आप गलत नहीं टिक कर सकते, यहां आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. तो आपको यूनिट चेक कर लेनी है कि आंसर हमारा किस यूनिट में पूछा गया है, राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस व्हाइल अटेम्प्टिंग योर टेस्ट सीरीज. प्रिपेयर फॉर द एनवायरमेंट फॉर द एग्जाम. तो टेस्ट सीरीज होपफुली काफी लोगों ने शुरू कर दी है. जिन लोगों ने नहीं भी शुरू की है तो अभी आफ्टर लाइक दिसंबर के आसपास हमारे काफी हमारे टेस्ट सीरीज हो जाती हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं और हमारा आ जाता है शेड्यूल भी, राइट. तो शेड्यूल के अनुसार आप अपनी जो टेस्ट देंगे उनका टाइम सेट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट, ओके, जो रियल टाइम गेट एग्जाम का एनवायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एनालिसिस, राइट. जो टेस्ट सीरीज में करते हैं कभी कभी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यस, एंड दे हैव टू बी देयर इन द टेस्ट सीरीज. बिल्कुल टेस्ट सीरीज में वो होने ही है, राइट. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपको एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं टेस्ट सीरीज की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, यस. नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम टू आंसर. जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आंसर्स आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज में उनको आपको थोड़ा टाइम देना है, राइट, समझने के लिए, यस, और बहुत ही पेशेंसली समझना है चीजों को. एंड यस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, रिवाइज मोर एंड मोर. यहां पे एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, रिवाइज मोर एंड मोर, यस. नेक्स्ट इज आपको सारी मिस्टेक्स जो करनी है अभी टेस्ट सीरीज में कर लेना, बाद में आप अफोर्ड नहीं कर सकते. गेट एग्जाम में, रियल टाइम एग्जाम में आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते. आपको सारी मिस्टेक्स अभी करनी पड़ेंगी व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट सीरीज, ठीक है. तो सारी मिस्टेक्स अभी कर लेना. इसके बाद कोई मिस्टेक आप उसको उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपकी रैंक लूज करनी पड़ेगी, राइट. सो आई होप आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताए, आपके लिए हेल्पफुल होगी, राइट. और इसी तरह के और भी कंटेंट आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. आज का लेसन, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए. आपके और कोई सुझाव हो और कोई सजेशन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट. आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह का और भी सारा कंटेंट और भी सारा इंफॉर्मेशन लेके आता रहूं. और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, बिकॉज फॉर दैट from that you will be notified for all the upcoming amazing content. So guys, thanks for having me on this session. I'll be meeting you in the next video. Till then, goodbye.